कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 16 वचन संख्या 13। आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और साहसी तथा समर्थ बने। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम इस बाइबल वचन में मनन चिंतन करते ही रहेंगे और आज का जो थीम है स्ट्रेंथ, शक्ति, उसके ऊपर हम एक वीडियो देखें। Santi nació con catarata congénita y perdió un ojo, o sea, de ese ojo no ve. Yo siempre lo sobreprotegí. Cuando él termine el colegio se va a Tucumán a estudiar ingeniería agronómica. Me llenó de satisfacción, que era algo que yo no pude terminar, y me encantaba que un hijo mío se dedique a eso para que me continúe conmigo en el campo, ¿no? Siempre soñé como que cada uno iba a formar su familia, a tener muchos hijos. Es más, estuvo de novio 5 años. Una chica muy chula, la queríamos mucho acá en la casa. Me hacía la película ya de que me iban a suceder y me imaginaba yo que del día de mañana se casarían con esta chica y los tendría viviendo allá en Huachipa. En Tucumán, estando ahí, un día me llamaron por teléfono para participar de un retiro espiritual. Acepté porque nunca había hecho un retiro espiritual para ver de qué se trataba. Me pegó muy fuerte. Yo sentía que Dios me pedía que no haga eso una vez por mes, yendo a una misión, sino que sea algo de todos los días. Y bueno, y me di cuenta que quería que le entregue toda mi vida. Tenía que viajar para contarles esto. Un día vengo del campo, yo estaba sentado con mi mujer. Y él vio el momento justo para decirnos que nos tenía que comunicar algo. Le dije, papá, espérame acá. La llamé a mi mamá, tengo algo que contarles. Decidí entregarme a Dios como numerario en el Opus Dei, que iba a ser célibe. La verdad que fue una notición a mí que me cayó como un balde de agua. Yo tenía pensado otra cosa para él, verlo rodeado de hijos. Sentía que el corazón se me destrozaba. De golpe y raja, no tenerlo era un desprendimiento muy grande para ella. Sentía adentro como que no lo aceptaba, pero lo acepté. Yo vi que él era la vocación de él, entonces me parecía bien que haga lo que él sentía. Me sorprendió la respuesta de Ricardo, porque si bien es católico, iba a la iglesia, todo, pero siempre los chicos fueron de mi mano, en realidad. Yo siempre he sido cristiano, pero no tan practicante como se dice. Las decisiones de los hijos cuestionan nuestros propios paradigmas y nuestra propia confianza como educadores, como padres. Es un buen momento para decir qué me pasa a mí cuando un chico me da los dados de otra forma de la que yo las venía pensando, ¿no? Y eso puede ayudar mucho también al matrimonio a plantearse pautas de educación, formas de comunicarse con los hijos, formas de transmitir la religiosidad en la familia o la fe. Los dos charlábamos y decíamos no podíamos creer esta decisión, no entendíamos. Me fui dando cuenta que a mi mamá un poco no era que lo hacía tan feliz el tema en su momento porque no conocía mucho. El día siguiente ya empecé como a andar, perdida por todos lados. Me senté en la computadora y estuve como 4 horas investigando. Cosas que como madre no podía entender que era eso. Entonces después que vi todos esos documentales, todo lo que en internet, también hablé con un padre legionario. Me dijo que todas las vocaciones, sea sacerdocio, religiosa o pertenecer al Opus Dei, todo era bueno mientras sigan el camino de Dios, mientras sea para la santidad de cada uno. Yo lo primero que les diría es vayan y conozcan de la mano del hijo. Toquen la puerta, vean el lugar, conozcan a la persona que lo está ayudando, un director espiritual, el referente que sea, y después honestamente ábranse a lo que el chico les quiera contar. Tiene que ser un momento de mucha confianza, o sea, de mucha honestidad por parte del hijo y de los padres. Me parece bien que hayan salido de sí para poder conocer un poco más la realidad en la que yo estaba. Y a raíz de esto me puse a
investigar un poco más, acercarme más a Dios. Fue a un retiro y empezamos a leer cosas, libros juntos, a formarnos un poco más y a unirnos más como matrimonio. Me invitaron a un retiro del Opus Dei. Fui y cuando terminó el retiro me encantó. Y entonces, bueno, empezar a conocer un poco más a la gente y vivir un poco más, si se dice, del otro lado. Me ayudó a acompañarla más a ella, a vivir más juntos, a tratar de formarnos un poco más, principalmente yo que nunca me formé mucho en la vida cristiana. De verlo a Santiago, ¿no es cierto?, decidí involucrarme un poco más en esta vida espiritual y la verdad que está bueno, ¿eh? Dios os bendiga, porque en esa obra de esa alma ha sido el Espíritu Santo, pero habéis sido vosotros desde niño, le habéis preparado para recibir la gracia de Dios. Un 90% de eso os lo debe a vosotros. Mirad, los padres de familia, lo que podéis hacer, ¿eh? Dar la felicidad del cielo y una buena parte de la felicidad de la tierra. Están contentos, ven que yo estoy feliz y que eso también ayuda a muchísimas personas a crecer también interiormente y que eso impacta, digamos, en un montón de gente. Yo puedo decirle a todos los padres que su hijo les plantea una vocación, que tienen que tomarla con alegría y que los tienen que acompañar y rezar mucho por ellos, que no tengan miedo, sobre todo porque es bueno, es lindo y sobre todo porque uno lo ve feliz, ¿no? Eso es lo más importante. El primer consejo sería que lo apoyen, ¿no es cierto?, porque es una decisión que nos manda Dios de arriba, ¿no es cierto?, y realmente creo que una familia que tiene ese llamado es bendecida. Lo siento más unido a ellos. Creo que ahora hay otro ambiente, digamos, ¿no? No se puede explicar, se respira como un ambiente diferente y eso como que hace muy bien a todos, digamos. Pensar que los hijos no son de nuestra propiedad, que nosotros somos un instrumento de Dios en su plan. Ojalá que a todo el que le toque esto traten de apoyarlo a sus hijos en esto porque realmente es muy lindo que te pase una cosa así. चलिए हम कुछ क्षण मौन रहें और जो पढ़े गए वचन और दिखाए गए वीडियो पर मनन चिंतन करें। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय यीशु। बहुत ही सुंदर वचन आज हमें जो मिला, पहला कोरिन्थियन 16 चैप्टर 16 का वर्स 13। आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और साहसी तथा समर्थ बने। और कहीं ना कहीं आज जो हम वीडियो देखे हैं, उस वीडियो में ही हम ये तीनों, इस वचन से मैंने 4 शब्द को लिया है और ये चारों शब्द बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में दिखाया गया है। जागते रहना, विश्वास में दृढ़ रहना, साहसी और सामर्थ बने रहना। इस वीडियो का थीम जो कि है ईश्वर ने मेरे बेटे को चुना, इस वीडियो की खूबसूरती को बढ़ाता है और संदेश को और मजबूत करता है। यह कहानी सैंटियागो की है, जो जन्मजात मोतियाबिंद के साथ पैदा हुआ था और उसकी एक आंख चली गई थी। उसके माता पिता हमेशा उसके प्रति अति संरक्षित रहते थे। उसके पिता खुश थे कि सैंटियागो ने कृषि संबंधी विषय में पढ़ाई की, क्योंकि वह अपने पिताजी के खेतों में मदद कर सकता था। और साथ ही उसकी माँ का सपना था कि उसके बच्चों का अपना परिवार होगा और उनके कई बच्चे होंगे। लेकिन हाँ, हमारी जो योजना होती है वह जरूरी नहीं है वही ईश्वर की योजना हो। और ठीक यही सैंटियागो के साथ हुआ। सैंटियागो 5 साल से उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक रिलेशनशिप में था, जो कि एक बहुत ही ब्राइट लेडी थी। उसके माता पिता ने अपने बेटे की शादी और परिवार के सपने देखने शुरू कर दिए थे। और एक दिन सैंटियागो को एक फोन आता है और उसे एक रिट्रीट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है और यह उसका पहला रिट्रीट हो रहा होता है। उसे रिट्रीट बहुत अच्छा लगता है
और उस रिट्रीट के दौरान ही उसे यह महसूस होता है कि उसे भगवान हर दिन ऐसे ही रहने के लिए कह रहे हैं। ऐसे ही यानी रिट्रीट में जिस तरह से वह अपना समय ईश्वर के साथ बिताता था, उसी तरह की बुलाहट के लिए ईश्वर उसे बुला रहे हैं। वह समझ गया था कि परमेश्वर चाहता है कि वह स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। और सांतियागो को इस कॉलिंग, इस बुलाहट के विषय में बताने के लिए अपने माता पिता से बात करना पड़ा। और इस अब तक की सांतियागो की कहानी से हम यही जान सकते हैं कि हम जब कुछ भी आम काम कर रहे होते हैं या जो हम हर रोज करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें सामर्थ्य की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारे लाइफ में आता है, तब हमें ईश्वर की सामर्थ्य की कहीं ना कहीं बेहद जरूरत होती है। एक बुलाहट आता है, तो तब हमें उस ईश्वर के बुलाहट को फॉलो करने के लिए ईश्वर के सामर्थ्य की जरूरत होती है। और हाँ, उस बुलाहट को जानने के लिए सबसे अति आवश्यक चीज जो हमारे जीवन में हमें जरूरत है, दैट इज जागते रहना, जो कि आज के वचन में हम सुनते हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना है, जागते रहना है। अगर हम खुद को जागते हुए नहीं रखेंगे, हमारे मन, दिल, कानों को खोल करके नहीं रखेंगे, तो हम ईश्वर के बुलाहट को पहचान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला चीज जो सांतियागो से हमें सीखने को मिलता है कि हमें सबसे पहले खुद को जागते हुए रखना है, और तभी हम उस बुलाहट को पहचान पाएंगे। अब उस बुलाहट को पहचानने के लिए कहीं ना कहीं सांतियागो वो रिट्रीट में भाग लिए। वो रिट्रीट से उनका विश्वास और दृढ़ हुआ और वे अपने उस बुलाहट में मजबूत हो पाए। लेकिन क्या उनके माता पिता इस बुलाहट को समझ पाए और मजबूत हो पाए? तो कहीं ना कहीं उनसे हमें सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हमें विश्वास में मजबूत रहना है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से उनके माता पिता अपने बेटे के उस कॉलिंग को समझ पाते हैं। और हम यहाँ देखेंगे कि जब सांतियागो अपने कॉलिंग को अपने माता पिता के साथ शेयर करते हैं कि उन्हें एक नुमरारी बनना है, उन्हें एक सेलिबसी का लाइफ, यानी वे ना शादी करेंगे, ना प्रीस्टहुड में जाएंगे, लेकिन वे अकेले रह करके ईश्वर के काम में आगे बढ़ेंगे। एक नुमरारी बनकर ऑपस डे में खुद को रखेंगे और ईश्वर को समर्पित करेंगे उनके काम के लिए। तो यह बुलाहट को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उनके दोनों ही पेरेंट्स कुछ अलग ही प्लान कर चुके थे। तो उन्होंने ऑपस डे के साथ जुड़ने का प्लान को, सांतियागो ने ऑपस डे के साथ जुड़ने का प्लान को, फैसले को अपने पेरेंट्स के सामने रखा। और कहीं ना कहीं उनके माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी अलग योजनाएं थी और स्वीकार करना कठिन था। लेकिन यह जान पाए, यह कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि यह उनके बेटे का बुलाहट था। सांतियागो के पिता यह देख पाते थे कि वे ख्रिस्तीय तो थे, लेकिन उस ख्रिस्तीय के जीवन को अच्छे से अभ्यास नहीं कर पाते थे। और उनके माता पिता को यह एक चुनौती की तरह लगा। और बीच में हम एक साइकोलॉजिस्ट से यह बातें सुनते हैं कि वह बताती है कि बच्चों का एक एक चॉइसेस पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग रहता है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस को एक क्वेश्चन करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी भी देता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग बना सके। और यहाँ हम देखते हैं कि सांतियागो के पेरेंट्स अपने बेटे के बुलाहट को जानने के लिए कोशिश करते हैं। उस सांतियागो की माता रिसर्च करना शुरू करती है, ढूंढना शुरू करती है, जानना सीखना शुरू करती है, और वह उसके बाद एहसास कर पाती है कि उसके बेटे का बुलाहट क्या है, और जान पाती है कितना गहरा है। और साथ ही उसके पिताजी ईश्वर के और नजदीक आने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि विश्वास में दृढ़ होने के लिए सबसे पहले हमें
यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ईश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो दोनों ही माता पिता ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, अपने बेटे की बुलाहट को पहचानने की कोशिश करते हैं, और उस जानने के दौरान वे कहीं ना कहीं ईश्वर के और नजदीक आ पाते हैं, और वे भी ऑपस डे के साथ जुड़ते हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है। वे भले ही उम्र में बहुत बड़े रहते हैं, लेकिन तब भी उनमें वो बदलाव लाने की इच्छा रहती है। तो हम यह जानेंगे कि विश्वास, जब हम विश्वास को अपने जीवन में लेकर के आते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में एक बदलाव आता है, हम साहसी बनते हैं। और हम यहाँ देखें कि सांतियागो के माता पिता दोनों ही बहुत साहसी बनते हैं। वे अपने बेटे के बुलाहट को एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत ही सुंदर एक पंक्ति सांतियागो के पिताजी कहते हैं कि ब्लेसेड आर दोज फैमिलीज हु हैव चिल्ड्रन हु रिसीव अ कॉलिंग। ये बहुत ही सुंदर बात है, सुंदर बात हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि वो परिवार बहुत धन्य है जहां पे बच्चे ऐसा कॉलिंग रिसीव कर रहे हैं। तो वे अपने आप को, उस फैमिली को धन्य मानते हैं, और अपने बेटे के साथ वोकेशन में साथ देते हैं। कहीं ना कहीं वे उनके सारे एक्सपेक्टेशंस, होप, सारे चीजों को तोड़ता है, लेकिन वे एक नई दिशा में चीजों को देख पाते हैं और ईश्वर के और नजदीक आते हैं, और उनका परिवार कहीं ना कहीं बदलता है और एक नया एटमॉस्फेयर देता है जो सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये सारे कदमों को जब वे लेते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं ईश्वर का सामर्थ्य बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और ईश्वर के सामर्थ्य के लिए जानने की कोशिश करना, सीखने के बाद उसे ग्रहण करना, उसमें विश्वास करना और खुद में बदलाव लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सारा सामर्थ्य कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से ही मिलता है। संत होजे मारिया बहुत सुंदर तरीके से यहाँ कहते हैं कि बच्चे जो भी हैं, कहीं ना कहीं माता पिता से ही उन्हें जो भी मिला है, वे जो भी आज हैं, उन्हें माता पिता से ही मिला है। तो माता पिता ही उन्हें सहायता प्रदान कर सकते हैं, वो अनंत खुशी को भी पहचानना और इस पृथ्वी के खुशी को भी पहचानना। और माता पिता ही मदद कर सकते हैं ईश्वर के उस अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए। और इसके लिए माता पिता को जागते रहना, विश्वास में रहना, साथ ही बच्चे को जागते रहना और विश्वास में रहना और साहसी बनना कि ईश्वर का जब बुलाहट आता है तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। हमें कहीं ना कहीं अपने नॉर्मल रूटीन से हट के चीज़ों को करना होता है, हमें अपने जीवन में बदलाव लाना होता है। और उस बदलाव को लाने के लिए हमें साहसी बनना जरूरी है और वो ईश्वर का सामर्थ्य लेना जरूरी है, ईश्वर से स्ट्रेंथ मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए हम सभी को इस वीडियो और इस वचन से खुद के लिए लर्निंग लेंगे, खुद के लिए सीख लेंगे। और आज जो भी हमने इस वीडियो में देखा है, ये 1-2 दिन का बात नहीं है, बल्कि सालों सालों का मेहनत, सालों सालों के बदलाव, विश्वास में बढ़ने का एक फल है। आइए हम भी उसी तरीके से अपने जीवन में हमेशा जागते रहें, ईश्वर को जानने की, उन्हें ढूंढने की कोशिश करें, उनमें विश्वास करें, साहसी बने और ईश्वर से अपना समर्थ ले, ईश्वर से अपना बल ले। इसके लिए हम निवेदन करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।